महात्माओं एक वो अद्भुत वस्तु मिली है हमना आ पैकिंग है बे अठवाडिया पहला आपનું ઓપરેશન કરાવેલું છે અનુભવ સાબર જો બધા એનો અનુભવ આજથી 38 વર્ષ પહેલા દાદા ભગવાને સાંજે સત્સંગ 2-3 દિવસ વાત કરી કે અમને બેટાળ આવ્યા હતા પણ એક ભાઈ આવ્યા ઘરે અને ફ્રેમ બહુ સરસ છે એટલે અમે ગમે છે લઈ જાઓ અમે આપી દીધી અમારા બેટા આવ્યા ગયા આ સબ્જેક્ટ ડેવલપ કરી અને પછી ત્રીજે દિવસે બરાબર સાંભળજો સાંજે 4 થી 6:30 ની અંદર કનુ દાદાને ચશ્મા હતા 20 રૂપિયાના ચશ્મા હતા 20 વર્ષથી હા 20 વર્ષથી દીપકભાઈને 5 નંબરના ચશ્મા હતા ના ભાનુભાઈને દીપકભાઈને બી હતા બધાને ને યોગેશને બી હતા દાદાએ શું કહ્યું કોને કે લાવ બધા ચશ્મા લઈ ગયા છે અને બધાને લઈ ગયા હવે હું ત્યારે 7:30 વાગે નોકરીથી આવ્યો એટલે મને કહ્યું કે આ બધા ચશ્મા લઈ દીધા છે પણ મારાથી બોલાયું નહીં આ મારું દોડ આપણ કે મારે ચશ્મા અત્યાર સુધી રહી ગયા પછી જે જગ્યાએ પહેલી વાર દાદાને મળેલો ને એ જગ્યાએ દાદાએ કીધું તું મને જ્યારે યાદ કરીશ ત્યાં મને પહોંચી જશે એ જગ્યા પર આંખની હોસ્પિટલ મારા ઘરની બાજુમાં ઓપરેશન રૂમમાં જતો હતો ને ત્યારે દાદાને કીધું દાદા તમે કીધું છે ને કે જ્યારે યાદ કરીશ કે પહોંચી જશે તું મને સંભાળીશ કે પહોંચી જશે તો બરાબર ઓપરેશન ટેબલ ઉપર 10 વખત દાદા હાજર થયા છે અને મને લાગ્યું નથી કે મારું ઓપરેશન થયું છે ફૂલ ડે તેથી સાબુભાઈને બધા ઘરે આવેલા રાતના 9 વાગ્યા સુધી વાતો કરી રાખી કોઈ દિવસ સત્સંગમાં ખાલી નથી ગયો હજી એ ના પાડી છે તમારા વખતે કુલરને સતત બોલ્યા વગર રહેવાતું નથી આશ્ચર્યમાં જાય છે બધું આમ તો આશ્ચર્ય લાગે પરંતુ અનુભવ છે હકીકતો પણ અદ્ભુત છે કે આજે એક આંખના 50 થી 60,000 રૂપિયા ઓપરેશન રહે છે કે દાદા ભગવાને પાસે કઈ સિદ્ધિ હતી કે બધાના ચશ્મા લઈ દીધા 20 વર્ષના ચશ્મા આ કહેવા માંગુ છું આ વિજ્ઞાન અહીંયા કામ કરે છે આ જગ્યા પર કોઈ ડોક્ટર માની ન શકે કે વગર ઓપરેશને 20 વર્ષના ચશ્મા જાય 5 નંબરના ચશ્મા જાય એટલે જ કહ્યું ને અરુણભાઈ તો હતા તેની રાત્રે 9:30 સુધી ડોક્ટર છે એટલે દાંતનું બરાબર એવું કરી હતું કે તમે દાંતની તકલીફ નહીં નડે ને આ થઈ ગયું બધા પણ રોજ આવું બોલાય જ કરે છે દેવાતું નથી એટલે માટે કહ્યું શું જાગતો કે ઊંઘમાં ખબર પડતી નથી
અદભુત. કવિરાજ, આજે થોડા જેવા સમયમાં કામ બધું બતાવવાનું છે બધાને. નહીં બરોબર નહીં, એ બધું ચાલે જ ન. પરંતુ અમિત સાહેબે એનું બહુ સીડી 30મી દીપક જે એમને આપી છે, જોઈ રહ્યા છે ત્યારે એમાંથી એક સૂત્ર એમને લાગ્યું તે લખ્યું છે. અને સંતપતિ વસંતી સાહેબ જોડે થોડું એમને વાતો થઈ. એમાં એમનાથી આ મુદ્દે નીકળ્યું છે. તમને ખબર હશે વસંતભાઈ? તો એમાં શ્રીમદજીએ જ્ઞાની પુરુષના લક્ષણો અને એમની પહેચાન ઓળખાણ જે રીતે થાય એના માટે ઘણું એમના પત્રોમાં આવે છે. ઘણું આ પ્રમાણે દાદાએ આ કાળને અનુરૂપ જ્ઞાનીને જ્ઞાની લક્ષણો, સમજણ, સત્સંગનું મહાત્મ્ય વગેરે બહુ ઘણી રીતે ઘણા પ્રસંગો અને દાખલાઓ દ્રષ્ટાંતો સાથે આપણને બહુ સારું સમજાવ્યું છે. ઘણું સારું. એક રીતે જો બધાને મળે ઘણું કામ કરે. પરંતુ અમીન સાહેબ થોડું પુરુષાર્થ છે એમનો, પણ એમની થોડીક મર્યાદાઓ છે બધી. પણ એમાંથી અનુભવ 30મી ચાલે છે એમની પાસે. તેમાંથી આ સૂત્ર લખ્યું છે. दादाजी हिंदी में बोलिए ऐसा मत. अच्छा हजी थोड़ा सा हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है. तो भाई उनको बैठने दो. ये सब पूना से आए हुए हैं. अच्छा, अरे पूना से बस आई है, इसका मैंने बताया. आनो विशाल बस लेके आए. ऐसा सुना अंतिम साहब है. वो दूर है. अंतिम साहब कौन है? बस बात बहुत है. मैंने उनको बताया कि कविराज को विनती करो इस बात को ना के आए हैं. तो एक दिन उनकी तबीयत जरा देख के उनकी संभाल से अनुकूलता होगी तो दमयंती बहन को भी पुनः जाना है. हमने बताया अभी कि भरत और भरत के बच्चे हैं तो सभी के लिए संजीवनी बेस्ट है. तो वहाँ जाके एक दफे जाके आओ. मेरी एक सूचना है आप लोगों को, पूरा फैमिली को. बहुत अच्छा हो जाएगा. अपना बड़ा अपना सिग्नल भी जा सकता है. जाओ जाके आओ और अपनी सब लोग व्यवस्था कर देंगे. तो एक विनती करना चाहिए आपको, बोलना चाहिए. बिन बुलावा से नहीं आते कोई. अच्छा बैठ जाओ. तो 20 नंबर के अनुभव से लिया है सूत्र. ज्ञानी पुरुष सारा वर्ल्ड के सेवक कहलाते हैं. बोलो. वर्ल्ड का सेवक महीना जगत के जीव मात्र का सेवक. ज्ञानी पुरुष की मजबूरी हुई या मर्जी हुई? मुझे जवाब दीजिए. मजबूरी हुई या मर्जी? मजबूरी को फर्जियात बोलते हैं. तो ये मर्जी पूर्वक की फर्जियात है. मर्जी की फर्जियात है. मर्जी ना हो तो फर्जियात बगा, मगर मर्जी ना हो तो वो उससे सेवा नहीं हो पाएगी. और आगे समझाया उन्होंने. सेवक शब्द सेवा और सेवा करना उसके साथ जुटा हुआ है. सब कुछ ये दादा भगवान कहते हैं कि हमारी सेवा जिसके हिस्से में आई और अगर उसी को जगत की कोई भी प्रकार की भीख न रही तो वो हमारा सरकारी हो जाएगा.
दादा भगवान ने फरमाया है, समझो। अब अंदर उतर के सोचो, मालूम हो जाएंगे उनका परमार्थ। उसके अलावा उसके साथ हमें सर्वशक्तियां काम करनी होती है, सर्वशक्तियां। कारण वो हमारी लाइन वाला मानुष कहलाएगा, केवल जगत कल्याण की भावना वाला। क्या समझे? मतलब जगत कल्याण करने वाला नहीं, केवल जगत कल्याण की भावना करने वाला। जो प्राप्त भव में शरीर से सारा जन्म से आखिर तक बनता रहता है, शरीर के माध्यम से, वहां समझो हमें ज्ञानी मिले, उससे हमें स्वरूप ज्ञान आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, और आत्मज्ञान प्राप्त होते ही जहां हमें माना हुआ हम थे वो क्या है उसका भी पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया। अर्थात जहां आत्मा नहीं है, अर्थात अनात्म भाग, उनका भी सही ज्ञान सही ढंग से सभी प्रकार से ज्ञान हो गया। दोनों का विभाजन हो गया, प्रकृति और पुरुष। उसके पश्चात एक कर्म है मेरी नौ कर्म है या मेरी 9 कर्म, वो 9 आंख एकले में आया 9 कल में क्या आया, हमारे साहब ने बहुत अच्छा लगा विषय। तो उसमें 9वीं कमल है, हे दादा भगवान मुझे जगत कल्याण करने की उत्तम निमित्त बनने की परम शक्ति दे। उत्तम निमित्त बताया, उसमें कर्ता भाव नहीं है। वो भावना की हमेरी प्रोजेक्शन है, अर्थात कारण बोया जाता है। बिना कारण बोया गए कार्य परिणाम स्वरूप नहीं प्राप्त होता, और प्राप्त भव वो सब कार्य स्वरूप है जन्म से आखिर तक। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोलते ही नहीं क्या? नहीं, ऐसा नहीं आया तो बोलो। अच्छा, आगे बताते हैं कि सब अमित साहब ने संकलन किया है, और सब दादा भगवान जी संकलन से एक सूत्र विगत से समझाया है उन्होंने। ज्ञानी पुरुष और फिर ज्ञानी पुरुष भी केवल जगत कल्याण के अर्थ से ही, मतलब से ही विचरते रहते हैं। आज विश्व में जो कोई भावना करने जैसी हो तो वो मात्र जगत कल्याण की ही भावना करने जैसी है। क्या लगता है आप सबको? बोलो ने, ये कल्पना थोड़ी है, हाँ? हकीकत है कि नहीं है? जगत कल्याण की भावना जिसको जिसको होती, वो भावना खुद का कल्याण कर देती है। कारण उसमें उसकी जवाबदारी कुदरत की हो गई। खुद को जवाबदारी पर से ऐसा रहना ही पड़ता है, जीना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, ऐसा रहता है। उसमें असल मुक्ति पाई उस समय इतना तो कुदरत के पास चला गया, यहाँ से मुक्त हुआ। बहुत गहरा विज्ञान है, सारी भाषा में समझाया गया है। और इसी तरह जगत कल्याण की भावना की दृष्टि से दोनों सेवक और सेवा करने वाले अगर ऐसी एक ही लाइन के हुए तो वो विरल विभूति कहलाते हैं। विरल विभूति कहलाते हैं। देखो कई काल में इतनी संख्या में परमात्मा प्रकाश देहधारी परमात्मा स्वरूप ज्ञानी पुरुष की विद्यमानता से इतनी संख्या में कभी ज्ञान नहीं हुआ। एक आश्चर्य काल है 5वां काल, उसको शास्त्रों में भी आश्चर्य काल बताया गया है।
और कौन सा आश्चर्य? दृढ़ आश्चर्य, दृढ़ महीना। और दूसरा क्या बताया है कि भयानक कुंडावसर्पिणिका, ये अवसर्पिणी जो है वो कुंडक महीना भयंकर, बहुत भयंकर बिहार। तो कुंडावसर्पिणिका उसका स्पेशल विशेषण दिया गया। उसमें ऐसे हुए ज्ञानी पुरुष ज्ञान होता जब निर्शासन चल रहा है उस दरमियान होना और सभी को लाभ देना बहुत असंभव है, शक्य नहीं। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में सबको मिला, एक ही, किसी को ज्यादा नहीं किसी को कम नहीं। और जो हमारे आत्मपुत्र साहब मिले उनकी गरज से खास करके, ठीक है ना साहब? तो बोलो ना, मुझे सुना ही नहीं पड़ता, खुद की गरज से गए हमें गरज नहीं, दादा भगवान हमें बना गरज थी नहीं। अरे क्या पता ही नहीं था किसके लिए जा रहे। ये कमाल है, भगवान की कमाल है। दादा भगवान ने बताया कोई एक गरजवान जीव मेरे पास आया नहीं है, मुझे अपना सभी फाइलों का निकाल करने के लिए मुझे गरजवान बनना पड़ा। कोई बताया नहीं किसी को, लेकिन नटू काका ने पूछा दादा भगवान एक दिन तो आप बोल देंगे हम सब आपकी फाइल है, तो फाइलें और क्या है? मामा के उनके घर, इसीलिए तो फाइलों का संभाल निपटारा निकाल, उसमें कितनी गहरी समझ रखी है, कितनी, और खुद के जीवन के संदर्भ में वो सभी को ये समझ खुली हो सकती है, मिला नहीं हो सकती क्या? अपना काली साहब ठीक है ना, विशाल क्या बोलते हैं, और आनंद कहाँ गया? कभी आप संजीवनी के निमित्त से सब जाओ, काम भी बन जाएगा और सब जाएंगे तो सब लगेगा, लेकिन 2-3 दिन रहो और सत्संग जो होगा वही भी काम बनेगा, व्यवहार भी बनेगा, सब ठीक है। मैं समझा ये जाने से बहुत अनुभव है। मैंने तो उनको साहब बताया राजेंद्र साहब को कि मेरे आत्मपुत्र का खास आप करो, लेकिन वो बोले आत्मपुत्र 2-2 करके आए तो यहाँ पुनः को सत्संग का लाभ भी मिलेगा और उनको व्यवहार का भी लाभ मिलता जाएगा हमसे। आपने कहा होगा क्यों कि आत्मपुत्र की हमें जरूरत है, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहा तो हम लोग मजा करेंगे। स्वार्थ तो होता ही है, क्या स्वार्थ को सेल्फ इंटरेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खुद का इंटरेस्ट। और सेल्फिशनेस को दूसरों में अपना इंटरेस्ट मानना और उससे प्राप्त कर लेना, दूसरों में से सेल्फिशनेस वो किसी को मालूम नहीं पड़ती। जैसा चूहा रात्रि को सो गए हैं, आता जाता रहता है फ्रीडम में उसको, तो यहाँ लगता है तो वो करके उसकी एनेस्थेसिया करता है और पीछे करता है चूहा कैसा कहा जाता है। रघुनाथ स्वामी को ऐसा हुआ, नडियाद में रघुनाथ स्वामी, और इसे उनकी तबियत बहुत कमजोर हो गई। हाँ, आखिर में इसे आश्रय वहाँ आए थे और सब इसी अपना लगा शासन कराए आखिर के दिनों में, ऐसे होता सकता है। तो वर्तमान में प्रगट प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष है वो शुरुआत में कनुभाई संपूज्य दादा भगवान की अहर्निश आज्ञा धर्म के साथ निरंतर सेवा में रहते थे। मुझे मालूम नहीं मैं सेवा में रहा, लेकिन ये दादा भगवान ने मुझे रखवाया। ये मेरा अनुभव मैं बताता हूँ आपको। हम तो कुछ मालूम ही नहीं, कुछ नहीं करियर जानते अच्छे,
दमयंती में नहीं, इसी दादा भगवान ज्ञानी पुरुष की अद्भुत महिमा है, अद्भुत महिमा। आज ये काल में हम कैसे ये हमारी कुछ चीज समझ जा रहे हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दादा भगवान ने बताया, नरेंद्र भाई कहाँ बैठे हो, तो बताया कि जो श्रीमद जी को 3 पुरुष मिले थे, अगर मुझे वो मिलते तो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते ऐसे जीवन में। दादा भगवान ने शिव की खाई की, गिरधर लाल जी साहब की, चंपाबेन साहब की कैसे में बताया है। बोलो साहब, उनकी हाजिरी में अच्छा निकलता था सब। तो उसमें दादा भगवान क्या करते हैं, तो स्पर्धा में से जो निकल गए हैं उनको राइट स्पर्धा में डाल देते हैं। स्पर्धा ही नहीं, स्पर्धा ही नहीं, कोई 1 नंबर ले, कोई पीछे नहीं, 2 ले, कुछ नहीं सर, नंबर ही नहीं है। अकेले आटू ले, सब अकेले आटू ले और सब साथ साथ में। बच्चे ने कितना अच्छा बताया हमने। ये अक्रम विज्ञान की कमाल है, अक्रम विज्ञान की कमाल है। अक्रम विज्ञान विरोध वाला विज्ञान नहीं है, लेकिन क्रमिक मार्ग को सहाय करने वाला और सारा क्रमिक मार्ग को सही समझ देने वाला विज्ञान है। अगर विज्ञान स्वरूप से विज्ञान है, तभी भी किसी भी प्रकार की मान्यता, आराधना किसी को अपने से मानी गई हुई से होती है, उसमें सुलटापन आ जाता है और वहां ही उसका सुगंधी स्वरूप से हमें फल मिलता है। वही आराधना। दादा भगवान किसी को कुछ बदलते कुछ नहीं, खाली समझ दे देते हैं और कुछ नहीं करते। ज्ञानी पुरुष का यही फंक्शन है, क्योंकि खुद मन, वचन और व्यवहार से एक शरीर के एक परमाणु के कर्ता नहीं है। जो परमाणु क्रिया से उनकी क्रियाएं और अवस्थाएं बनती रहती है, हुआ करती है, वहां वो बिल्कुल नहीं है, साथ साथ में है, लेकिन उनके साथ है। ऐसे मन वचन का व्यवहार शरीर के साथ है, तो साथ में होना बड़ी महत्व की बात बन गई। वो हमें 5 फंडामेंटल आज्ञा है, 5 फंडामेंटल, वो सभी 24 के एक अवसर्पण काल चक्र के पूरे, जो जब अच्छा ठीक समय, मध्यम समय में 5 आज्ञा रूपी धन, 5 महाव्रत रूपी जो साधुपन था, आचार्य भगवान थे, वो 5 व्रत, पीछे वो 5 महाव्रत उपाध्याय जी को पलवाते थे उनकी सामर्थ्य से। और उपाध्याय जी जो 5 महाव्रत ऐसी पलवाए हुए, जिसने जो उसमें पाली, ऐसे वो साधु को समझाते थे और उसमें लग जाओ। ऐसी क्रम थी वो समय की। आज एक क्रम उल्टी हो गई है, वहाँ इस उल्टा ज्ञान मिला कृपा से, उस उल्टे से हमें वही 5 महाव्रत, 5 फंडामेंटल सेंटेंस में आ गए, सेम पूरे। और पहले 2 आज्ञा में कि व्यवहार दृष्टि से मैं नामधारी हूँ और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ, अर्थात बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट दादा भगवान मैट्रिक फेल, ऐसे इंग्लिश रखी कि बल्कि निम्न कोटि के मनुष्य भी समझता है। व्यवहार निश्चय दृष्टि तो शास्त्रों का प्रमाण है, लेकिन ये रिलेटिव व्यू पॉइंट, रियल व्यू पॉइंट, उसका पूरा साइंस खुला किया कर देंगे साहब पूरा। देखो हम शास्त्र पढ़ते आए, ये किया सब कुछ समझ लेते हैं। तो आज की ये 5वां आला की भाषा में वो सब खुला हुआ और उन्हें बने। जो मैंने पाया है सभी को प्राप्त हो। क्या ये शरीर चला जाएगा बिना किसी को प्राप्त, तो मेरी भावना इसी भावना ही रह जाएगी।
तो भावना खाली होने के लिए हम लोग मजा हमको आ गई सब लोग को। काम उनका किया उन्होंने और सारा भोजन तैयार हमने ले लिया। ऐसा हुआ क्या? नहीं। तो आज तो हम ऐसे हैं, तैयार मांगने वाले हैं सब कुछ। हमें तैयारी थाली दो भाई, इससे झंझट कौन करे। और ऐसी वैसी थाली नहीं चाहिए सर, थोड़ा तो दादा भगवान का प्राकट्य केवल जगत कल्याण के अर्थ से ही हुआ है और वही अर्थ से आज के प्रगत ज्ञानी पुरुष जगत के जीवों के लिए जीवन आदर्श जीवन के से सब जगह जी रहे हैं। उनका जीवन आदर्श जीवन हमको सभी को ये प्रमाणे का जीवन जीने का बोधपाठ उससे प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार की विकराल जीवनचर्या उसी में जगत जीव मात्र का अत्यधिक कल्याण समाया हुआ है। चलो ये तो लंबा है तो अभी समझ भी कम है तो शॉर्ट है, आपके पास आएगा तरह से जब ये अकल विज्ञान में आ जाएगा। कभी दो प्रश्न है वो कविराज ले लेते हैं छोटे से एक नहीं आपको को बनना है ये आपको तो समझे ये कागज ये जो है प्रताप भाई आश्रम आए हैं। कहाँ है प्रताप भाई आश्रम? हाँ तो प्रताप भाई आपको अपने समझाए बरोबर है तो आप समझ गए कुछ पूछना जरूर है उसमें से, वहां से तो नहीं सुना जाएगा लेकिन थोड़ा आगे आना पड़े जल्दी ही। आप किसी से जोर से बाय बाय ट्रांसफर कर दो क्या तो अगर बोलना है तो उसको बायलिस होगा तो आशर जी ये आपको कॉर्डलेस देता है कॉर्डलेस प्रताप भाई सुनते हैं क्या? आपने जो लिखा है उसके लिए सही विज्ञान की समझ के लिए मुझे मिलना पड़े, आज तो समय नहीं है, अगर तो आप तो पुत्र साहब को मिलो मिल जाएगी सही, लेकिन आपने बहुत ढंग से ठीक फरमाया है उसमें, तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा पूछना है समझ के लिए, अगर हो तो बताओ। प्रताप है चल दूसरे प्रश्न पर जा रहे क्या अच्छा चलो ऊपर उन्होंने बताया कि मुझे ये समझ में आता है और क्या तो कि दादा भगवान ने जो एक ज्ञान आज का जब विज्ञान वो क्रियाकारी है उसके संदर्भ में उन्होंने नीचे बताई हुई 5-7 चीज बाबत से समझ में आया है और उसके अंत में वो पूछते हैं कि उससे हमें ये समझाया जाता है, हमें मुझे समझ मिली कि अक्रम प्लस समझण बगैर नो पुरुषार्थ इज इक्वल टू क्रम अक्रमणी भेषे, उसको बताए। मैना दादा की शताब्दी गाड़ी छोड़कर लोकल गाड़ी पकड़ने जा जैसा हो गया। शताब्दी ने इसको वो अपनी शताब्दी तो बहुत फेमस है सबको, लोकल गाड़ी में बैठे तो लोकल गाड़ी में पैसे कम पड़ते हैं सस्ती पड़ती है, समय ज़्यादा लगता है समय तो हमने कितना है पास आराम से जाएंगे उसमें क्या हमें तकलीफ है? समय तो बहुत है, आराम से जाएंगे ना उसमें क्या तकलीफ है? 800 रुपए समय की क्या कीमत है?
कोई विषय वही उन्होंने अच्छा, मैं दूसरा आप समझ गए ना? तो आपने जो लिखा है समझ से आपके हिसाब से, लेकिन विशेष जानकारी के लिए और अनुभवों का आदान प्रदान होने के लिए आप तक तो मिलना, कविराज को मिलो। आप समझे ना? कोई बड़ी राय तो भी इसमें से हो सकती है, क्योंकि कई समय का अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ है, इससे आपको और आपको भी है। अच्छा, करने को मुझे उषा फिरोजिया, तो फिरोजिया कंपनी वाले उन्होंने पूछा है स्वसत्ता और परसत्ता के बारे में समझाइए। स्वसत्ता वो खुद की सत्ता है जिस सत्ता को हम वापर नहीं सकते, हम उसको शरीर के साथ साथ होते हुए हम उसको काम में नहीं ले पाते, उसको स्वसत्ता बोलते हैं। प्रश्न है कुछ, क्यों नहीं आप पूछती है कि तो पीछे स्वसत्ता का लाभ ही क्या, फायदा क्या? तो पूछा क्यों नहीं मुझे? तो कोई जवाब दो मुझे, पूछो तो जवाब दो, बिना पूछे नहीं क्या बोलूं मैं? अरे उनको बोलना है, जल्दी बोलो, समय कम है। सत्ता में रहना बोला तो वो कैसे करेंगे? तो वो डब्बी में हीरा है, बच्चे को बता दिया ये डब्बी तू तब खोलना, तो बच्चा है पिताजी बताए खोलना नहीं, इसे मैं बता दिया था नहीं, और जब नहीं समझ खोल के देखे तो उसमें क्या लिखा हीरा, तो अगले अलग ही निकल गया। ऐसी ही सत्ता है, हमें मालूम ही नहीं। हमारी सत्ता अखुट खजाना है अंदर सुख का, और वो सुख कैसा, अगर वो हमें चखा, हमें उसका स्वाद आया, अनुभव आया, तो वो सुख आप अपनी सत्ता के वापर से बांटेंगे नहीं, लेकिन आप में से उसकी सारी स्पंदने जाते जाते सबको सुख के आंदोलन उनको पहुंच जाएंगे। मनुष्य है, मानव है, भारत में जन्मा हुआ मनुष्य की बहुत कीमत है अगर समझ जाए तो, और नहीं है तो दो कौड़ी भी नहीं, कुछ नहीं चलते जाते। तो समझ लिए। और परसत्ता बताया तो हमें नहीं है, उसको मानी हुई है वो, और उससे तो जी रहे हैं। जो उषा बहन है वो उषा बहन में हम जी रहे हैं। उषा बहन है, उसमें हमें जीने की कोई जरूरत नहीं है, उससे उषा बहन मर नहीं जाने वाली है, वो तो रहने ही वाली है, नहीं समझे आप? तो लेकिन उषा बहन के साथ तो हम रह सकते हैं नहीं, वो जी रही है, हम उसके साथ नहीं रह सकते क्या? इस सत्ता का विभाजन हो गया। तो कब जो हमेशा सभी मन वचन और वाणी और व्यवहार की सभी सत्ताओं से मुक्त, पर सत्ताओं से मुक्त हो गए हैं और स्वसत्ता में कायम के लिए स्थित हो गए हैं, समझे? ऐसे उनकी कृपा से होता है। कृपा ऐसी चीज नहीं है कि शरीर की क्रिया से हो, कभी भी नहीं। उनकी नजर से नजर मिलाओ, अगर मिल गए तो बता काम बन गया, आपको कुछ कर जाओ, ज्ञान मिल गया। बहुत मुश्किल है। कविराज ने फरमाया सत्पुरुष को बेटो चाहे ताड़ मिले, सुबह बोलो दो लाइन।
पंक्ति में सामने वाले व्यक्ति के शुद्धात्मा भगवान से चंदूलाल क्षमा मांगते हैं तो दृष्टांत बताया, खाली हमें समझ लेना है। क्षमा सामने वाला व्यक्ति करता है या शुद्धात्मा भगवान करता है? आत्मा तो निर्विकल्प विकरागी परमानंदी अव्यवहार स्वरूपी है। कमाल किया आपको प्राप्त हुआ तो आत्मा के पक्ष वाले हो गए। आत्मा किसी को उनका पक्ष वाला बनाता नहीं तो आत्मा ही नहीं। ये पक्ष वाला बनने की बनाने की ये सब बातें हैं वो सारे पुद्गल में है। और प्रतिगम जो है वो पुरुषार्थ है, लेकिन पुद्गल पुरुषार्थ है। क्या बताया? कौन सा पुद्गल? तो कि अति हुआ पुद्गल वो प्रति हो के सही कुदरती पढ़ने में आ जाता है, नेचुरलिटी में आ जाता है। वो अननेचुरल हुआ, एब्नॉर्मल हुआ, इरोगिलो हुआ, वो नॉर्मलिटी में आ जाता है। सती अति का प्रति करण लेना करना वो पुरुषार्थ में गया, लेकिन वो पुद्गल की क्रिया होते हुए भी वो आत्मा पक्षी क्रिया है। आत्मा के पक्ष साथ समझ लेना। ये सब गुण बोलते हैं तो जब आपको फुर्सत मिले तो बोलो, तो कितनी फुर्सत मिलती बताओ मुझे, ये बात है। और फुर्सत मिले तो उसको पहचान के वो फुर्सत का सदुपयोग करने ऐसा किसने सीखा? दादा बाबू ने बताया कि फ्री टाइम ढूंढ निकालो। सारा दिन में फ्री टाइम तो कभी मिलता ही नहीं होगा। हम यहाँ से ये सब हुआ, प्रसाद लिया, निकले, घर नहीं पहुंचे, यहाँ से मुक्त हुए, वहां वो घर से ग्रहण नहीं हुए, तो इसका काफी टाइम हो गया। दृष्टांत बता रहा हूँ, ऐसा तो समय में कहीं आते हैं। गांधी जी कितनी ऐसा देश के लिए कई काम किए, इतने शरीर थक जाता था, तो कभी है तो सब चलती थी, तो तुम आगे बोलो तो बोलो, तो आपको होती है 5 के 10 मिनट मिली है और उसमें तारीफ हो जाते थे। दादा भगवान कमाल के आप समझे, हम सभी के लिए है, सभी के लिए समय तो मिलता नहीं होगा, नहीं समय मिलने बहुत डिफिकल्ट है। कहीं आनंद बोलने में समय मिलता है तेरे को, निकालता हूँ, निकालता हूँ, प्रायोरिटी रखता हूँ। क्या करता है? प्रायोरिटी। और आप क्या करते हैं? ऐसी बात खाते भी समझे। तो ये बात समझिए आप सबका पुद्गल में, आप समझिए बोलो, पूछो जल्दी पूछो, लो साथ में। शुद्धात्मा कैसी देखे सामने जब हम ऐसा है कि हम एक नीचे की कोर्ट से हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से वहां तो एक ठीक नहीं, किसी हाईकोर्ट में विजय पटक गई, लेकिन सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके चीफ जस्टिस साहब को मिलकर आप करोड़ रुपये डालाओ, तो कोई हमें दाद नहीं देता है। तो शुद्धात्मा की कोर्ट के आगे कोई किसी की सारा ब्रह्मांड में किसी की कोर्ट नहीं, तो उस पर गर्व से मुझे बात, क्योंकि दादा भगवान की कमाल है, तो बहुत उसमें बहुत गहरा रहस्य है, बहुत गहरा रहस्य। ये जगत में जानता नहीं है, अगर जान ले सही ढंग से तो काम बन जाए। जो फाइनल उसके आगे व्यवहार की कोर्ट नहीं है और सभी कोर्ट से परे, ये बात है। आज तीर्थंकर भगवान तो नहीं है, लेकिन आज तीर्थंकर भगवान जैसे ही उनके रिप्रेजेंट करने वाले ऐसे हैं, और रिप्रेजेंट करने वाले उसको रैप बोलते हैं, आरईपी, उसको कमीशन मिलता है। लेकिन यहाँ एक तीर्थंकर के रैप को कमीशन नहीं मिलता है, तो इसीलिए वो रैप बोलते हैं। राष्ट्रपुत्र था दादा भगवान की रैप है, लेकिन वो ऐसे कमीशन खाने वाले नहीं है। हमें उसको शहरी है तो हमें किराना पड़ गया है, वो कमीशन नहीं किया जाएगा। और हमें कितने हमें स्वाद के लिए उसका बोल रहे नहीं उसको कभी क्या बोलते हो, आपको विनती करके क्यों आपसे लाभ मिलता है, समझिए। बस एक अच्छा है हेमा दादर भेजती है, कहाँ है? निकल गई है, तो संयोग और साथ में एडजस्ट नहीं होगा, उसका तो आपको मदद नहीं हो गया।
मतलब जरूर आज समझ में एक थोड़ा समय आज आप सबको परमात्मा आज हमें समक्ष प्रवीण साहब है जो हमारे वितराग विज्ञान चैरिटेबल रिसर्च फाउंडेशन सूरत में है। रिसर्च को नया नहीं निकालने वाला है, लेकिन जो है उसको सही ढंग से लागू करने वाला है। कहीं कहीं गंभीर अर्थ है वो अच्छी भाषा में सभी विश्व के सभी लोगों को जो दादा भगवान की भावना इच्छा थी ये विज्ञान सारे विश्व के कोने कोने में पहुंचना चाहिए, ऐसी ढंग से वो वहाँ कर रहे हैं। भारत के लिए सभी लोगों को, भारत के उत्तर पश्चिम दक्षिण उत्तर सभी 4 दिशाओं सभी को यहाँ बुलाते हैं और सब कॉन्फ्रेंस करवा लेते हैं। ऐसे एक कॉन्फ्रेंस अमेरिका में हुई 2010 की साल में अप्रैल में हुई है, अगस्त 27। तो वहाँ जो हुआ था उसमें हमारे आपका पुत्र डॉक्टर शैलेश आनंद जी, वो आपके डॉक्टर है, बड़ौदे में है। मेरे ख्याल से आपको तो ज्यादा से सब लोग जानते होंगे, बोलो ना हाँ के ना बस। तो उन्होंने जो रजूआत की थी नरेंद्र भाई से, तो इतनी अच्छी सब लोग इतने प्रभावित हो गए थे। तो मैं तो आज ये आपका पुत्र साहब को जीभ फूटी है, वो सामान्य तौर से शांत है, ठीक है नहीं, खुश हो गया मैं और बिल्कुल जोर से और डिस्प्ले करते करते सब जो पॉइंट से वगैरह और वन मोर देन ऑलमोस्ट 70 मिनट्स। तो उसके आधार पर एक पुस्तक बनी गई है, उसमें से जो रिकॉर्ड हो गई थी उसका स्क्रिप्ट निकाल के साथ बनाई गई है, बड़ी अच्छी है, आप सबको बहुत बहुत काम में आएगी। एक प्रश्न उठते हैं उसमें बहुत सा समाधान है। प्रताप भाई आपने सुनना, हाँ तो उसका आज खुला ओपनिंग करते हैं वो पुस्तक का पीछे आपका हाँ तो आप बताओ, आप सब देख रहे हैं, आपको तो एड्रेस में बतानी है मुझे। हाँ जय सच्चिदानंद। तो ये पुस्तक का नाम है An Introduction to Holistic Science and Ethics Globally। बहुत अच्छा उन्होंने कविराज बताया है, लेकिन वहाँ की कॉन्फ्रेंस इंग्लिश में हो गया है, क्योंकि बहुत सिंपल है। जो आज आपके बच्चे सब पढ़े हुए उसको तो आनंद आ जाएगा। आनंद समझो उसमें, उसके बैग में डॉक्टर शेषगिरी राव करके अमेरिका में है, वो एक रिसर्च सेंटर में जुड़े हुए हैं। उनका उसको भेजा गया तो उसको बहुत पसंद आया, तो उसकी थोड़ी एक पुस्तक के संबंधी या वीडियो दे दिया है, थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, तो इंग्लिश में क्या करूँगा, छोड़ो जरा, आप हिंदी करना बात हिंदी करता हूँ, चलो स्पॉन्टेनियस हिंदी करूँगा, गलती हो तो माफ करना। ये पुस्तक के बारे में डॉक्टर शैलेश मेहता का ये प्रस्ताव पुस्तक, ये बहुत सीधी सरल एक समझ देने वाला और हमें होलिस्टिक अप्रोच टू डेली लाइफ, अर्थात अंदर से हमें
रोजीले जीवन में कैसा जीना, वहाँ हमें प्रवेश कराने के लिए सबसे बड़ी अच्छी पुस्तक है। कौन सा वो समय, क्योंकि प्रोपाउंडेड बाय दादा भगवान ने एक कलिकाल में पंचम काल में खुली की है वही, और दादा भगवान की है ना बोलते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि उनका कॉपीराइट है वहाँ, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि दादा भगवान खुद हमें राष्ट्रपति साहब, कविराज, बड़ी लोग, महात्मा सब जानते थे, क्योंकि दादा भगवान तो खुद पब्लिक की प्रॉपर्टी है। तो पब्लिक की प्रॉपर्टी से आप चाहेंगे उसको यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन पार्लियामेंट में बोला जाता है ज्यादा नहीं बोलूंगा, तो ये सब है, उसमें समझ लेना। चलो बहुत कम बाकी है ना, तो अभी नरेंद्र भाई साहब रमेश, आपको मेरी तरफ से पुस्तक और नीचे अपना नीचे से एक एक बल्ले हैं, सभी ले लो आप। अरे वो बच्चे लोग उनको भी एक देना, कौन चीज को, आंचल और अक्षय को, उसके लिए और एक आपको दो देंगे। और ऐसा ही यहाँ मुझे पुस्तक है वो तो मुझे एक सबसे और सही है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको आलोक और आलोक की गुरु जी और दोनों के लिए समय में मत सुनना बराबर तो आलोक को सिखवाएगी और आलोक उससे सीखेगा और वो आलोक से सीखेगी। बॉक्स ની અંદર આપું આત્મસિદ્ધિ બુક્સ, આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર, દાદાજી નામ કરે છે 145 ભાષા છે આપણા અહીંયા ऐसा ही हमें आत्म हेतु जो भी हमारे पास आए उसको आशांतर क्योंकि हम एक आदमी ये सब उनकी गंभीरता बन जाते हैं वो जा रहा है। हकीकत में दादा ने बताया कि कोई तो बात करें, नमस्कार करो, उसके अंदर आओ, ज्ञान मुझे प्राप्त हो, कोई कितना करो। और वैसे तो एक लुटेरा का पुस्तक है, वो भी दादा इतनी जल्दी लिखते हैं, अब तो आश्चर्य होगा जानने से, हाँ? लेकिन दादा ने इस लूटबाजी से छूटने का रास्ता उसमें से निकाल के सबको दिया। तो कैसा कोई किसी को लूटोगा, किसी को क्यों, क्या खुद लूटे जाएंगे, जाओ तो समझाया वो विस्तार से समझाया उनको, किसी को क्षेत्रों में अब खुद क्षेत्र जाएंगे। तो साहब ने बताया था ना, मेरा आप सबको खूब आशीर्वाद है। आप सब हम भारतवासी बोलो पहला अपना जीवन में पॉइंट बना लो, लोगों मैं बोला था बोलो सबके लिए, सर्वप्रथम हम भारतीय है, सर्वप्रथम हम भारतीय है, सर्वप्रथम हम भारतीय है। कोई अलग अलग प्रकार के लोग बनाते हैं, बिजनेस वाले ये सभी, तो ये सूत्र बनाना, ये भोपाल की सेंट्रल जेल से आजीवन कैदी से प्राप्त हुआ सूत्र है। अजीत दुबे उसका नाम, अगर उनका पत्र सुने तो खुश हो जाएंगे, अभी अब आपको लाभ देंगे। भोपाल के सेंट्रल जेल के कुछ बोला नहीं, उनके पिताजी डॉक्टर थे, अच्छा घराने का था, सब कुछ तो उससे लोग खुश हो गया कि अगर सभी के दिल में जम गया तो भारत का कल्याण हो जाए। हमें नहीं है, हमें दिल में
पीछे दादा भगवान कैसे दे देता है, दादा भगवान सब पूरे करके काम करता है। हम सुबह से काम चालू करें तो हम एक खाली करें। क्यों कि देश भावना, देश कल्याण भावना और देश के लिए हमारी जो जिम्मेदारी है वो सब साथ में जरूर आ जाए। दोनों आज के काल की ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत उसकी डेफिशिएंसी है। मेरे आपको ठीक लगता है बहुत डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंसी कम हो जाए और हमारी देश प्रेम की भावना और तंदुरुस्ती सही बनती जाए, तंदुरुस्ती, ठीक है ना, इसीलिए बताया मैंने। और मेरी आप सबको खूब शुभकामनाएं सबके लिए और आशीर्वाद है। कौन सी शुभकामना के शुभ अशुभ स्वरूपी द्वंद्वों से मुक्त होने की, शुभ द्वंद्वों से मुक्त और शुभ में खाली यूनिलेटरल मेरा एक पक्षी वापरता हूँ। कौन सा शुभ? कल्याणकारी शुभ हो गया। मेरा कल्याण हुआ तो हम सभी के लिए कल्याण के लिए हमारी सारी प्रवृत्तियां बनेगी, वो शुभ ही बनेगी, लेकिन शुभाशुभ वाली नहीं बनेगी। ये मेरी समझ है, आपको जो सब ठीक लगे तो, लेकिन आप सबको मेरा आशीर्वाद है। भारत में जन्म पाया हुआ मनुष्य दादा भगवान ने फरमाया वो केवल मोक्ष प्राप्त की नहीं है, लेकिन वो जानते हैं मोक्ष क्या है, वो कल्पना से ले लेते हैं। मोक्ष क्या, किसने देखा, कहाँ गया, ये सबको इसे बात कर लेते हैं। इसलिए दादा भगवान ने बताया सारे शब्दों में कि मोक्ष वो हमारा स्वभाव है। क्या बोलो? मोक्ष स्वरूप हम खुद है, लेकिन हमें उसका भान नहीं। बात होने के लिए ज्ञानी को विश्वास से जाना है, उस समानता से कायम के श्वास श्वास से वो मोक्ष स्वरूप तरीके से है। जय सच्चिदानंद। दादा ने कौन दादा
आप खड़े हो जाइए। दर्शन करो, બધા બેસીને દર્શન કરો। आनंद जी सब बैठे। सब एकदम હરિ ઓમ નમઃ શિવાય।